Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve Unit 4, Link Lesson, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory for Class 8th. Students, आज हम इंग्लिश वर्कबुक का लिंक लेसन बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी यूनिट 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। A. Read the passage and answer the following questions. The elephant who forgot. एलिफेंट जो भूल जाता था। तो स्टूडेंट्स, Appu was an adorable elephant, but there was one thing about him he forgot. He forgot what day it was. He forgot to do his homework. He forgot to wish his teacher good morning, and he even forgot to kiss his mother good night. An elephant never forgets, darling, his mother said wearily. One day, when she got him ready for the school picnic, bananas are yellow in color, not pink. Candles are pink. And are bad for your teeth. Bananas are good for you, and elephants are supposed to trumpet, not bark. Now, will you remember that? Keep trying, son, said Papa Elephant, and don't let anyone get you down. Appu started for picnic from his school. Hearing a thunderbolt, all the baby animals ran here and there, and Appu was not found anywhere by the teachers. Appu fell into a hole, and as he was crying for help, he remembered elephants trumpeted. I remembered, he shouted, elephant's trumpet, and raising his pointed little trunk, he trumpeted away loud and clear. Hearing his trumpet, his teachers helped him to get out of the hole where he had fallen. After that, Appu never ever forgot his call. Now we shall look at the questions. Question 1. What was the one thing about Appu? अप्पू के बारे में एक बात कौन सी थी? The one thing about Appu was that he forgot. अप्पू के बारे में जो एक बात थी कि वह भूल जाता था. Second, what did Appu's mother tell him about bananas and candles? अप्पू की माँ ने उसे केलों व मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? Appu's mother told him that bananas are yellow in color, not pink. Candles are pink and are bad for your teeth. तो अप्पू की माँ ने बनानाज और कैंडल्स के बारे में उसे ये बताया. नाउ क्वेश्चन 3. हाउ डिड अप्पू कम आउट फ्रॉम द होल? अप्पू बिल से बाहर कैसे आया? अप्पू केम आउट फ्रॉम द होल बाय शाउटिंग elephant's trumpet in a loud and clear manner. Now question 4. Why did the baby animals run here and there? जानवरों के छोटे बच्चे इधर उधर क्यों भागे? The baby animals ran here and there because they heard a thunderbolt. Baby animals इधर उधर भागे क्योंकि उन्होंने थंडरबोल्ट को सुना. Now, working with language, grammar, A plurals, बहुवचन, example, bookshelf singular and bookshelves plural. Give the plurals of the following words. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो. अभी हमें जो है सिंगुलर के प्लूरल बताने हैं, यानी एक वचन के बहुवचन. फर्स्ट लीफ, इसका हो जाएगा लीव्स. सेकंड बेंच, इसका हो जाएगा बेंचेस. थर्ड लेडी, इसका हो जाएगा लेडीज. फोर्थ वुल्फ, इसका हो जाएगा वुल्व्स. फिफ्थ शिप, शिप सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. सिक्स्थ टूथ, इसका हो जाएगा टीथ. सेवेंथ आर्मी, इसका हो जाएगा आर्मीज. एट्थ साइक्लिस्ट, इसका हो जाएगा साइक्लिस्ट. नाइन्थ नाइफ,
इसका हो जाएगा नाइव्स। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, KNIVES। नाउ 10 मैन, MAN का हो जाएगा MEN। फिर 11th फिश का फिशेस और चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ये तो थे सिंगुलर से प्लूरल। अब बढ़ते हैं हम आगे बी कलेक्टिव नाउन पर। बी कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञा। ए हर्ड ऑफ काउज। हियर हर्ड रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ काउज। हर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन। मैच द कलेक्टिव नाउन्स विद द एप्रोप्रिएट नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स और नाउन्स दो कॉलम दे रखे हैं। हमें जो है कलेक्टिव नाउन्स को प्रॉपरली मैच करना है नाउन से। ए स्वार्म ऑफ, ये मैच होगा बीच से, BEES। ए मर्डर ऑफ, ये मैच होगा क्रॉस से, CROWS। थर्ड, ए लेटर ऑफ, ये मैच होगा पपीज से, PUPPIES। फोर्थ, ए पैक ऑफ, ये मैच होगा वुल्फ से, WOLVES। फिफ्थ होगा आपका एक कॉयर ऑफ, ये होगा सिंगर से। सिक्स्थ, अ बंच ऑफ, ये होगा कीज से। सेवेंथ, ए फ्लीट ऑफ, ये होगा शिप्स से यानी जहाज़ों से। एट्थ है आपका ए प्राइड ऑफ, ये होगा लॉयन से। 9 है आपका ए टीम ऑफ, ये होगा प्लेयर से। 10, ए फ्लॉक ऑफ, ये होगा आपका शिप से, भेड़ों से। तो स्टूडेंट्स ये तो थे मैच द कलेक्टिव नाउन्स विद द एप्रोप्रिएट नाउन्स। टुडे एट कालीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He was observing is the past continuous form of the verb observe. Use the past continuous tense of the verbs in the brackets to complete the sentences. As you all know that in past continuous tense was oblique verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इज यूज्ड। अगर प्लूरल है तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो सभी में आपको ऐसे ही करना है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट सेंटेंस, अली एंड अमीना डैश स्क्रैबल व्हेन वरुण कॉल्ड। ब्रैकेट में है प्ले, तो अली एंड अमीना ये प्लूरल हो जाता है तो वर्ब प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद आई डैश टू म्यूजिक सो आई डिड नॉट हियर द डोर बेल। ब्रैकेट में लिसन है, आई क्योंकि सिंगुलर है तो वाज लिसनिंग हो गया। थर्ड, रवीज आंट अराइव्ड फ्रॉम पटना लास्ट नाइट वाइल ही डैश स्लीप। तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस करना है, बात सिर्फ वाज और वर्ब की है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो आपको लगानी ही लगानी है, तो ही के साथ वॉज लगता है। रवीज आंट अराइव्ड फ्रॉम पटना लास्ट नाइट वाइल ही वॉज स्लीपिंग। फोर्थ, ग्रैंड फादर डैश फॉर अस व्हेन वी गॉट ऑफ द ट्रेन। ग्रैंड फादर के साथ भी वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज वेटिंग हो जाएगा। ग्रैंड फादर वॉज वेटिंग फॉर अस व्हेन वी गॉट ऑफ द ट्रेन। ब्रैकेट में वेट था तो हमने कर दिया वॉज वेटिंग। नाउ फिफ्थ वन, अनीता डैश ए लेटर व्हेन द फोन रैंग। ब्रैकेट में राइट। तो अनीता एक पत्र लिख रही थी जब फ़ोन की घंटी बजी, तो ब्रैकेट में राइट क्या हो जाएगा, अनीता के साथ वाज लगेगा तो वाज राइटिंग। अगला है सिक्स्थ वन, किरण डैश ए फिल्म ऑन TV व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। ब्रैकेट में वॉच है तो किरण जो है वो TV देख रही थी जब लाइट चली गई, तो वही आ जाएगा वाज राइटिंग। किरण के साथ वॉच लगता है, वॉज वॉचिंग। किरण वॉज वॉचिंग अ फिल्म ऑन TV व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। नाउ सेवेंथ वन, मनप्रीत डैश द न्यूज पेपर व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। तो मनप्रीत के साथ वाज लगेगा
ब्रैकेट में रीड है तो वाज रीडिंग हो जाएगा। मनप्रीत वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। Fill in the blanks with the past continuous form of the verbs in the box. बॉक्स में दे रखे हैं हैव, साइन, स्क्वीक, बार्क और प्लेयर। तो इन जो वर्ब्स हैं इनको हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। यानी क्या करना है, इनसे पहले वाज या वर लग जाएगा और इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। तो लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप एट ऑल, देयर वॉज सो मच हैपनिंग, द माइस वॉज डैश। तो वर्ब यहाँ पर यूज होगा स्क्वीक। स्क्वीक का कर लेंगे हम स्क्वीकिंग और उससे पहले लगेगा वॉज, तो वाज स्क्वीकिंग हो जाएगा। एंड द डॉग्स, और कुत्ते जो है भौंक रहे थे, तो डॉग्स के साथ लगेगा वर और फिर हो जाएगा बार्किंग। वर्ब था बार्क, हमने कर दिया उसका बार्किंग और उससे पहले वर लगा दिया। द पीपल नेक्स्ट डोर डैश अ पार्टी, पास ही में जो लोग थे वो पार्टी कर रहे थे। तो हैव वर्ब का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो हैविंग हो जाएगा और उससे पहले पीपल से के बाद लगेगा वर। तो द पीपल नेक्स्ट डोर वर हैविंग अ पार्टी, द पीपल नेक्स्ट डोर वर हैविंग अ पार्टी। देयर म्यूजिक सिस्टम डैश ऑल नाइट, उनका म्यूजिक सिस्टम सारी रात जो है ब्लेयर कर रहा था। तो वर्ब ब्लेयर है तो क्या हो जाएगा फिर वाज ब्लेयरिंग। द विंडो वाज ओपन एंड द मून डैश ऑन माई फेस, खिड़की खुली थी और चंद्रमा मेरे चेहरे पर चमक रहा था। तो वर्ब शाइन हो जाएगा वाज शाइनिंग। Vocabulary A. Given below are some verbs. Make nouns by adding the appropriate suffix. नीचे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं। मेक नाउन्स बनाओ बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स ऐड करके। एग्जाम्पल है आर्ग्यू प्लस मेंट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यू था आपका वर्ब और मेंट लगाने से बन गया आर्गूमेंट और फिर ये हो गया नाउन। तो इसी तरह से जो कन्फर्म है उस वर्ब का अगर हम नाउन बनाते हैं तो वो बन जाएगा कन्फर्मेशन, CONFIRMATION। अमेज का भी अगर हम नाउन बनाते हैं तो उसका बन जाएगा अमेजमेंट, AMAZEMENT। थर्ड एन्जॉय, इसका हो जाएगा एन्जॉयमेंट। फोर्थ कैलकुलेट, इसका हो जाएगा कैलकुलेशन। फिफ्थ एग्जीक्यूट, इसका हो जाएगा एग्जीक्यूशन। सिक्स्थ सब्ट्रैक्ट, इसका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सेवन्थ एनहेंस, इसका हो जाएगा एनहेंसमेंट। एट्थ रिमेंबर, इसका हो जाएगा रिमेम्ब्रेंस। नाइन्थ लाफ, इसका बनेगा लाफ्टर। और टेंथ ऑक्यूपाई, इसका होगा ऑक्यूपेंस। तो हमने इन वर्ब्स के जो है इस तरह से नाउन्स बनाए। अब आगे बढ़ते हैं। बी. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लिंक लेसन विद देयर मीनिंग्स। नंबर 1 थ्रिलर। थ्रिलर का जो मीनिंग होगा वो होगा ए नॉवल, प्ले और फिल्म विद एन एक्साइटिंग प्लॉट टिपिकली इन्वॉल्विंग क्राइम और स्पाइंग। तो थ्रिलर को आप मैच करेंगे ए नॉवल, प्ले और फिल्म विद एन एक्साइटिंग प्लॉट टिपिकली इन्वॉल्विंग क्राइम और स्पाइंग। सेकंड इंट्रूडर का मीनिंग होता है अ पर्सन हु गोज समवेयर वेयर ही इज़ नॉट वेलकम। एक व्यक्ति जो कहीं जाता है जहाँ उसका स्वागत नहीं किया जाता, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एन इंट्रूडर। तो इंट्रूडर को मैच करेंगे आप अ पर्सन हु गोज समवेयर वेयर ही इज़ नॉट वेलकम। फिर है थर्ड वन इनकंसीवेबल, इसका होगा नॉट एबल टू बी इमेजिन्ड। इनकंसीवेबल को आप मैच करेंगे नॉट एबल टू बी इमेजिन्ड से। फोर्थ इंसैनिटी, इंसैनिटी का होगा आपका सीरियस मेंटल इलनेस।
तो इनसैनिटी को आप मैच करेंगे सीरियस मेंटल इलनेस से। फिफ्थ एनकाउंटर, इसको आप मैच करेंगे एन अनएक्सपेक्टेड और कैजुअल मीटिंग, एक ऐसी मीटिंग जो आकस्मिक हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो, उसे हम कह सकते हैं एनकाउंटर। सिक्स्थ एम्बेरेस, एम्बेरेस का मीनिंग होता है कॉज टू फील ऑकवर्ड और अशेम्ड। आप थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड महसूस करें या अशेम्ड शर्मिंदा महसूस करें तो उसको हम कह सकते हैं एम्बेरेस। सेवेंथ है आपका स्लैम। स्लैम का मतलब होता है टू पुट डाउन समथिंग विद ग्रेट फोर्स। स्लैम को आप मैच करेंगे टू पुट डाउन समथिंग विद ग्रेट फोर्स से। एट्थ है रिडिकुलस। रिडिकुलस होता है हास्यास्पद। क्या मतलब होता है रिडिकुलस का? हास्यास्पद। ये मैच होगा फुलिश और एब्सर्ड से। नाइन्थ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आपका जो है इसका मतलब होता है स्वीकृति। इसको कहेंगे हम द एक्शन ऑफ कन्फर्मिंग। तो कन्फर्मेशन मीन्स द एक्शन ऑफ कन्फर्मिंग। एंड लास्ट वन इज अमेज। अमेज का मतलब आश्चर्य, सरप्राइज। तो ये हो जाएगा एस्टोनिश। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है क्लास 8th वर्कबुक यूनिट 4 हमने जो है किया है। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी की एक्सरसाइज हमने सॉल्व की। यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने चारों यूनिट जो है अब तक सॉल्व कर दी हैं। तो आप हमारी 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।